أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7، 9واں پارہ، سورت کا رکوع نمبر 19، پارے کا رکوع نمبر 9، آیت نمبر 152، 53۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ ان الذين اتخذوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکڑا، العجل، بچھڑے کو معبود بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے پروردگار کی طرف سے، وذلت، اور ذلت ان کو پہنچے گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ یہ آیا کہ اب تم نے توبہ کرنی ہے تو ایک دوسرے کو قتل کرو۔ توبہ کے لیے یہ شرط رکھ دی گئی، اور ذلت ہے دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں افترا باندھنے والوں کو، بہتان باندھنے والوں کو۔ یہ شرک کا اور بدعت کا بہت بڑا بہتان ہے، بدعت سے بڑا بہتان کیا ہو سکتا ہے؟ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها،
اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے زندگی میں جب انسان توبہ کر لے اور اصلاح کر لے۔ ثم تابوا ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب غصہ ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، جب آپ واپس تشریف لائے طور پہاڑ سے، دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں ہیں، غصے میں آ گئے اور وہ تختیاں جو تھیں تورات کی وہ پھینک دی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا طبیعت بھی آپ کی جلالی تھی، جلالی طبیعت کے مالک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ساکتا ٹھنڈا پڑ گیا، ام موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح، آپ نے پکڑ لیا ان تختیوں کو۔ الواح یہ جمع ہے لوح کی۔ وفی نسختہا، اور ان کے مضامین میں، نسخہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، مضامین، ان کے مضامین میں جو ان تختیوں میں تھے، ہدی و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یرہبون ڈرتے ہیں، فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو پھر ان میں سے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ تم میرے ساتھ چلو کوہ طور پر، وہاں جا کر دعا مانگیں اور استغفار کریں اور معافی مانگیں جو تم نے گناہ کیا ہے۔ وہاں جب گئے وہ 70 آدمی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعا کرنی ہے، آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور یہ آپ کا شرف تھا۔ انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، نیا مطالبہ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ اللہ پاک کو دیکھ لیں۔ پچھلا گناہ ابھی معاف نہیں ہوا، ایک نیا مطالبہ رکھ دیا جو کہ انتہائی نامناسب تھا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، جو وقت تھا آؤ دعا مانگ لیں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب پکڑا ان کو زلزلہ نے، زلزلہ آیا اور چیخ آئی، بڑی آواز، جیسے بجلی کی کڑک کی آواز ہے، اوپر سے اور نیچے سے زلزلہ، پھر وہ سارے کے سارے موت کی وادی میں چلے گئے، مر گئے۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، جب سارے مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام خاصے پریشان ہو گئے کہ اب قوم کے پاس واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے تم نے ہمارے بندے مروا دیے، 70 آدمی، اور وہ بھی منتخب شدہ، پسندیدہ۔ بڑے آپ پریشان ہو گئے، دعا کی، رب اے میرے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان کو اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھ کو،
मेरी भी वफात हो जाती और ये भी सारे फौत हो जाते इससे पहले जब हम कौम के अंदर थे, मेरा नाम तो ना लगता। अब तो ये कौम से बाहर आ चुके हैं, दूर पहाड़ पर है, अब मेरा नाम लगेगा, वो बड़ी परेशानी बन जाएगी। अतुहले को ना, क्या तू हलाक करता है हमको, बिमा फाल सुफहा मिन्ना, उस चीज के सबब जो हम में से बेवकूफों ने किया है। बेवकूफ मिन्ना, हमसे। इस लफ्ज से ये पता चलता है कि जब बछड़े की पूजा की है ना तो सारी कौम नहीं थी, बेवकूफ थे। इसी तरह जब ये मुतालबा किया है इन 70 में से कि हम अल्लाह पाक को देखना चाहते हैं वरना हमने ईमान नहीं लाना, तो वो सब ने सवाल नहीं किया था 70 के 70 ने, बल्कि सुफहा मिन्ना, बेवकूफ़ों ने, चंद लोगों ने ये सवाल किया। उसके सबब पकड़ सब की आ गई। इन हिया इल्ला फितनतु का, नहीं है ये मगर तेरी आजमाइश है, तू आजमाता है। तो ज़िल्लु बिहा मन तशाउ व तहदी मन तशाउ, जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। अंत वलियुना फग़फिर लना वरहमना, मूसा अलैहि सलाम अकेले ही दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, तू हमारा कारसाज है, हमें बख्श दे, हम पर रहमत फरमा। वान्त खैरुल गाफिरीन, और तू बेहतरीन माफ करने वाला, बख्शने वाला है। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, और तू लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में अच्छाई। ये उसी तरह की दुआ है जिस तरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, उसी तरह की ये दुआ है। व फिल आखिरति, और आखिरत में भी हमारे लिए अच्छाई। इन्ना हुदना इलैका, बेशक हमने रुजू किया, तौबा की तेरी तरफ। हुदना, हुदना का माना हमने रुजू किया, तौबा की। इसी लफ्ज़ से निकला है यहूद, यहूद तौबा, रुजू, इलैका तेरी तरफ, ए पाक परवरदिगार। ये तो दुआ थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अब इससे आगे अल्लाह ताला का जवाब। काला, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अज़ाबी, मेरा अज़ाब, उसीबु बिही मन अशाउ, मैं पहुँचाता हूँ जिसको चाहता हूँ। मेरा अज़ाब जो है वो आम नहीं है, आम नहीं। आम क्या है? वो मेरी रहमत है। वरहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत जो है हर चीज़ से ज़्यादा वसी है, आसमानों से ज़्यादा, ज़मीनों से ज़्यादा, हवाओं फ़ज़ाओं से, पानियों से और समुद्रों से, हर चीज़ से ज़्यादा वसी मेरी रहमत है। लेकिन वो रहमत मिलती किसको है, ये है आज के दर्स का अहम तरीन हिस्सा। रहमत मिलती किसको है? फसअक्तुबुहा, मैं लिखूंगा उस रहमत को, अता करूंगा। लिल्लज़ीन यत्तक़ून व युअतून अज़्ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं और ज़कात देते हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। तकवा सबसे पहले ये रहमत का सबब है, और दूसरा ज़कात देते हैं। यहाँ पर यहूद का बयान चल रहा था ना, उनके अंदर ये बड़ी बीमारी फैल गई थी, ज़कात नहीं देते थे। थोड़े बहुत थे, ज़्यादातर ऐसे ही थे जो ज़कात में डंडी मार रहे थे, और ज़कात की बजाय उल्टा लेन देन में सूद का सिलसिला चलाया हुआ था, अर्रिबा, सूद का। अल्लाह पाक ने इसलिए यहाँ सारी चीज़ों के अलरगम ज़कात का तज़किरा फरमा दिया। वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत है बेहद हिसाब है। हदीस है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान, एक अराबी आया, अराबी बदवी गांव का रहने वाला, और उसने अपनी ऊँटनी को बैठाया, उसे बांध दिया, रसूल अकरम के पीछे नमाज अदा की। जब नमाज से फारुग हुए अपनी सवारी के पास आया, उसकी रस्सी को खोला, उस पर सवार हुआ और बुलंद आवाज से कहने लगा, अल्लाहुम्मा अर्हमनी व मुहम्मदा फला तरहम माना अहदा। अजीब उसने दुआ की, कहता है या अल्लाह मुझ पर रहमत कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी किसी पर रहमत ना कर। ये दुआ शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा अर्हमनी व मुहम्मदा वला तरहम माना अहदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ सुनी, वो ऊंची आवाज से दुआ कर रहा था ना, तो फरमाया, अतक़ूलून हाज़ा अज़ल्लो अम बईरुहु अलम तस्मऊ मा क़ाला। सहाबा ये बताओ, ये ज़्यादा बेवकूफ़ है कि इसकी सवारी ज़्यादा बेवकूफ़ है? ये ज़्यादा कम अकल है कि इसका ऊँट ज़्यादा कम अकल है? तुमने सुना नहीं है जो इसने दुआ की है? इसने तो वसी चीज़ को बंद कर दी है। रहमत अल्लाह पाक की तो बड़ी वसी है। इन्ना लिल्लाहि मियत रहमतिन, अल्लाह पाक की 100 रहमत है। फ़अंज़ल मिन्हा रहमतन यतआतफ़ु बिहल खलाइक़ु जिन्नुहा व इंसुहा व बहाइमुहा। अल्लाह पाक ने 99 रहमतें अपने पास रखी हैं, एक रहमत दुनिया में नाज़िल फरमाई है जिसकी वजह से जिन्न, इंसान, हैवानात और दीगर तमाम मखलूक़ात आपस में रहमत और शफ़क़त का मुज़ाहरा करती हैं। और 99 रहमतें अल्लाह ताला के पास हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को उनसे माफ़ी अता फरमाएगा। सुनन नबी दाऊद शरीफ किताबुल अदब बाब मन लैसत लहू गीबा, हदीस नंबर 4885। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में हदीस 2753 और भी काफ़ी हदीस की किताबों में ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान मौजूद है। अल्लाह पाक की रहमतें। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर। ये आयत करीमा अल्लाह की किताब से बड़ा एक ख़ास मकाम है, और वो आयात करीमात अल्लाह ताला की सारी किताब से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, लेकिन ये आयत करीमा जो अभी हम पढ़ रहे हैं सूरत अल-अराफ से, इससे अल्लाह की तौफीक से एक ख़ास शगफ़ है, एक ख़ास मोहब्बत है। ये पारा नंबर भी 9 है और रुकू नंबर भी 9 है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह पाक ने 9 ही सिफ़तें बयान फरमाई हैं। पारा भी 9 है, रुकू भी 9 है, और 9 ही सिफ़तें एक आयत में प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए इस आयत करीमा से एक ख़ास किस्म का शगफ़ और मोहब्बत अल्लाह पाक ने नवाजा है और बख्शा है, और अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक की रहमत किसको मिलेगी? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी, वो लोग जो पैरवी करते हैं, जो कहा मानते हैं, जो इताअत करते हैं, अर रसूल, उस रसूल की जो नबी भी हैं और उम्मी भी हैं। पहली सिफ़त आपकी कि आप रसूल हैं। रसूल की तारीफ़ क्या है? जिस पर अल्लाह पाक का कलाम नाज़िल होता है और मुस्तकिल किताब मिलती है और नई शरीयत लेकर आते हैं, वो अर रसूल। अन नबी, नबी की तारीफ़ क्या है? कि जो पिछले ही पैगंबर की दावत को आगे चलाते हैं। इनको कोई नई किताब नहीं मिलती, पहला जो अल्लाह ताला का पैगंबर था उसकी दावत को ही आगे चलाते हैं, वो होते हैं नबी। तो लफ्ज़ रसूल का जो शान है ना, लफ्ज़ नबी से ज़्यादा है।
इसलिए कलमा में आता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि लफ्ज़ रसूल का शान लफ्ज़ नबी से ज़्यादा है। यहाँ भी अर रसूल पहले आया, अन नबी बाद में आया, क्योंकि अर रसूल का शान ज़्यादा है। उम्मी, ये भी आपकी सिफ्त है। उम्मी कि आपका उस्ताद दुनिया में कोई नहीं, अल्लाह पाक ने आपको सिखाया। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। ये भी आपकी सिफ्त है। अर रसूल, फिर नबी, फिर उम्मी, आगे फिर आपकी सिफ्तें। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, वो नबी जिसको वो पाते हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात में और इंजील में। देखो कितना अरसा गुजर चुका है, आज भी अल्लाह की तौफीक से तौरात और इंजील में आपकी बिशारत मौजूद है। अगरचे लोगों ने उसमें कुछ तहरीफात भी की हैं, प्यारे रसूल के नाम का तर्जमा करके लिख दिए, हालांकि नामों का तर्जमा नहीं लिखा जाता, तर्जमा किया है ताकि खराबी पड़ जाए, लेकिन ये ता क़यामत एक सिलसिला अल्लाह के फजल से कायम रहना है। यअमुरुहुम बिल मारूफ, आप हुक्म देते हैं अच्छाई का। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और आप मना करते हैं बुराई से। बुराई से हदीस में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी लड़का था बीमार, उसकी बीमार पुरसी के लिए चले गए। आपने वहां जाकर कसम देकर पूछा, अनशुदुका बिल्लज़ी अनज़लत तौराता हल तजिदु फी किताबिका ज़ा सिफ़ती, अपनी किताबों में मेरी सिफ्त पाते हो? कसम देकर पूछा। जब आपने कसम दी ना तो फिर वो बेबस हो गए और इस बात का इकरार किया। और वो लड़का जिसको आप बीमार पुरसी करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे, आपने दावत दी, उसने कलमा पढ़ा और उसी वक़्त फौत हो गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कहा कि तुम पीछे हट जाओ, अब इसके कफन दफन का और जनाजे का सिलसिला हम करेंगे, मुसलमान करेंगे। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और हलाल करते हैं आप उनके लिए तैयब चीज़ें, उम्दा, आला, साफ सुथरी चीज़ें। तैयब, इन लोगों ने अपने लिए ऊंट के गोश्त को हराम कर लिया था, चर्बी को हराम कर लिया था। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल करते हैं तैयब चीज़ें। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और हराम करते हैं उन पर खबीस चीज़ें, नकम्मी चीज़ें, खबाइस। उन्होंने सूर के गोश्त को हलाल कर लिया था, शराब को हलाल कर लिया, जबकि ये दोनों चीज़ें खबीस हैं। मुफ्ती आज़म सऊदी अरब शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, अल्लाह ताला उन पे बेबहार रहमतें नाज़िल फरमाए। नाबीने थे और बड़ा ही इल्म था दीन का। उनसे सवाल हुआ तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, इसके बारे में, तदखीन हलाल है कि हराम है? आपने फरमाया हराम है। तंबाकू अपनी सारी किस्मों के साथ हराम है, और 7 दलीलें पेश की कुरान पाक से और हदीस से, और एक दलील उन्होंने ये पेश की वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबीस चीज़ों को हराम करते हैं और ये तंबाकू खबीस है। ये 7 दलीलें पेश की, एक उनमें से ये आयत करीमा थी। नाबीने थे लेकिन अल्लाह पाक ने इल्म बड़ा अता फरमाया था। आज भी अगर अल्लाह पाक तौफीक बख्शे और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब हो, वहाँ बोर्ड चलता है ना, उस पर हदीसें और आयतें लिखी होती हैं, तो वो तंबाकू नोशी का भी आ जाता है और साथ ये आयत आ जाती है बोर्ड पर, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, अल्लाह के नबी खबीस चीज़ों को हराम करते हैं और ये खबीस है। बोर्ड चल रहा है और ऊपर ये आयत चल रही है। वयदउ अन्हुम इसरहुम, और आप दूर करते हैं उनसे उनके बोझ। इसरहुम, बोझ, बोझ आप दूर करते हैं। एक बोझ तो यही है ना
जो यहाँ पढ़ा है कि तौबा के लिए कत्ल करो, तौबा के लिए कत्ल करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानियाँ लेकर आए। अब तौबा के लिए कत्ल करने की ज़रूरत नहीं, बस माफ़ी मांग लो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। ये बोझ था, ये भी आपकी बरकत से अल्लाह पाक ने ख़त्म फरमा दिया। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो तौक जो उन पर थे, अल्लती कानत अलैहिम, वो तौक जो उन पर थे, उन पर तौक, जो तौक का माना रस्म और रिवाज जो अपनी तरफ से बना के अपने सर पे डाले हुए थे, वो तौक थे। वो एक ये बनाया हुआ था कि जो औरत है अय्याम हैज़ में उसके बर्तन अलग कर दो, उसका खाना भी, और उसे घर से एक तरफ कर दो। और काफ़ी रस्में बना रखी थी। जैसे आजकल आप देखते हैं कि शादी की रस्में और मरने की रस्में, अल्लाह अकबर, ज़कात देते हो नहीं देते, लेकिन शादी की रस्म भी करनी है, मरने की रस्म भी करनी है। अमीर है तो फिर भी रस्म करेगा, गरीब है तो फिर भी करेगा। ये है वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, वो तौक जो लोगों ने अपने ऊपर खुद डाल लिए हैं। अल्लाह के नबी तो इनको ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह रहमतम वासिया, एक सवाल किया एक आदमी ने कि अगर कोई औरत अपनी खुशी से अपनी विरासत का हिस्सा माफ़ कर देती है, अपने भाई को खुशी से माफ़ कर देती है, तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया ये नाजायज़ है, गलत है। और साथ ये लफ्ज़ वल अगलाल अल्लती कानत अलैहि, फरमाया खुशी कोई नहीं है, ये मुआशरे का बोझ है और एक फंदा है और एक तौक है, जिस तौक की वजह से बहनें कहती हैं माफ़ी है। ये आयत आपने तिलावत फरमाई वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और ये लफ्ज़ सवाल करने वाले को लिख कर दे दिए। तौक और फंदा और रस्म की वजह से खुशी कोई नहीं होती, खुशी का ऊपर लेबल होता है। उस्ताद मोहतरम ने ये फतवा लिख कर दे दिया। फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू, पस वो लोग जो ईमान लाए बिही, उस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब 4 काम करने हैं। नंबर 1 ईमान। ईमान क्या है? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबाअन लिमा जितु बिही, कोई बंदा उस वक़्त तक ईमानदार हो नहीं सकता हत्ता कि अपनी ख्वाहिश को मेरे हुक्मों के ताबे कर ले, अपनी ख्वाहिश को मेरे हुक्मों के ताबे कर ले। और फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, तुम में से कोई शख्स ईमानदार हो नहीं सकता हत्ता कि अपने माँ बाप से, औलाद से और सारी कायनात से ज़्यादा मोहब्बत करे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है ईमान। दूसरा काम व अज़्ज़रूहु, और आपकी ताज़ीम करे, व नसरूहु, उन्होंने मदद की आपकी। ये 3 काम हो गए। चौथा काम वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू, और उन्होंने पैरवी की उस नूर की जो उतारा गया आपके साथ। नूर उतारा गया वो कुरान पाक है। अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम, ये नूर उतारा गया है, इसकी पैरवी की। तो जो ये 4 काम कर ले जो यहाँ पर बयान हुए, ईमान और ताज़ीम और नुसरत और इत्तिबा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले। अल्लाहुम्मा रब्बना इजअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हम सबको इनमें शामिल फरमा दे। तो ये आयत करीमा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में
شان میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔